हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, पिछले टर्म पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। प्रॉब्लम तो नहीं की थी, एक टॉपिक एक्चुअली आपसे डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक देखा था, उस पर एक्चुअली जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.1 है। उसको देखते हैं, उसके बाद कुछ और एडिशनल क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट वी ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 8.1. लेट वी कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, इट इज एक्सरसाइज 8.1. What is first question? They are saying you are given a triangle ABC which is right angled at B. AB is 24 and BC is 7. I have to determine sin A, cos A, etc. So let me first make the triangle ABC. Suppose it is triangle ABC. We are given that angle 90-degree angle is B. AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Okay, and I have to find, there are two parts in this question. First part is I have to find the value of sin A and cos A. Sin A and cos A. I have to find these two values. Let me try to find out. Remember, if we are saying sin A, then our angle of consideration is this. Okay, if angle A is angle of consideration, then what should be perpendicular, what should be base, and what should be hypotenuse here? Perpendicular should be, if angle A is consideration, then perpendicular is the side opposite to angle of consideration, means BC. Correct? Base should be AB. Hypotenuse is always the side opposite to 90-degree angle. So hypotenuse is AC. Suppose we have to find the value of sin A. What is the formula for sin A? Sin A is perpendicular upon hypotenuse. याद करिए वो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले सोना चांदी तोले. So sin A is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is BC actually. Hypotenuse is AC. BC is known, but AC is not known here. So first I have to find the value of AC, and using Pythagoras theorem easily we can find it. So let me first find AC. I can say using Pythagoras theorem, I can say AC square is equal to BC square plus AB square. I can say that. It can be rewritten as BC is 7, so 7 centimeter whole square plus 24 centimeter whole square. 7 sevens are 49 centimeter square plus, now what is 24? 24 रफ में करके देख लेते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो भाई मैं तो ऐसे ही करके देख लेता हूँ. 24 4 जा 96, कैरी 9, 24 4 जा 2 जा 48, 48 and 9 is 558. Am I right? एक बार और देख लेते हैं भाई. 24 4 जा 96, 6 कैरी 9, 24 2 जा 48, 48 and 9 is 57. Okay, चलिए. So it is 576 centimeter square. Add them. 6 plus 9 is 5. Carry 1. 5 plus 7 is 12. Carry 1. 5 1 6 25 centimeter square. So what should be the value of AC? AC should be square root of 625 centimeter square. Centimeter square का square root centimeter. So it is 25 centimeter.
तो इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC। अब जब मुझे AC की वैल्यू फाइंड हो गई, इजीली आई कैन फाइंड साइन ए, एंड देयरफॉर आई कैन से साइन ए इज इक्वल टू BC over AC. BC is 7 centimeter, AC is 25 centimeter, so it is 7 over 25. Remember, जब मैंने ये रेशो निकाला तो इसकी कोई यूनिट नहीं आ रही है। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम लोग निकालते हैं, दे डू नॉट हैव एनी यूनिट बिकॉज दे आर द रेशो ऑफ द साइड्स। ठीक है ना, दे आर द रेशो ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट, एंड दैट इज वाई नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज एनी यूनिट, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, और ये भी याद रखिएगा, साइन ए डज नॉट मीन साइन इनटू ए, इट इज ओनली द सिंबल। ओके, हाँ, चलिए, तो इन द सेम मैनर यू कैन फाइंड कॉस ए ऑल्सो। चलिए, अब तो कॉस ए तो बहुत आसान है निकालना। कॉस ए मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन होता है, तो ये नेचुरली बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहां पर क्या है, अगर एंगल ए कंसिडरेशन है, इट शुड बी AB ओवर AC। अब AB भी मुझे पता है, AB इज 24 सेंटीमीटर, AC is 25 centimeter. So what is the value of cos A? It is 24 over 25. So in this manner easily I can find the value of sin A and cos A. मुश्किल नहीं है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। Let me come to another problem. It is question number 3. We are given that if sin A is equal to 3/4, okay, very easy. Then calculate cos A and tan A. Cos A and tan A. आप कह रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है भी। इसमें ध्यान देने वाली बात बस क्या है, ये ध्यान रखिए, और ज़्यादा कुछ नहीं मुझे कहना है। जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मैं पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। सपोज आई एम गिवन अ ट्रायंगल ABC, सपोज इट इज एंगल A, B एंड C, इट इज सपोज 90 डिग्री। ओके, मुझसे कहा जा रहा है साइन A इज इक्वल टू 3/4 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी, 3/4। मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं इसको तो मान लेता हूं साइन ए है, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ कंसिडरेशन तो ये है। तो मेरे हिसाब से अगर साइन ए 3/4 है तो मुझे यह पता है कि BC व्हेन डिवाइडेड बाय AC मस्ट बी इक्वल टू 3/4। यही तो हुआ ना इसका मतलब। अगर मुझे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो इन दोनों का रेशियो जो होना चाहिए ये इट शुड बी 3:4। अब यहां हमसे गलती क्या होती है बेसिकली, बस ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। हम इसको तो 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता था भाई कि ये 6 होती और ये 8 होती। ये भी तो हो सकता है ये 9/12 होता, मीनिंग तो वही है। रेशो तो हम हमेशा सिंपलेसिटी निकालते हैं ना, समझ रहे हैं ना आप ये बात। तो हम क्या करें, मुझे तो नहीं पता है कि ये क्या है। अब पता नहीं 3 से किस नंबर का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो नंबर। मैं क्या मानता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि सपोज दिस साइड इज 3x एंड सपोज दैट साइड इज 4x। अब नो मैटर कि ये साइड जो है ये 3 और 4 का कौन सा मल्टीपल है, लेकिन in general I can use the sides as 3x and 4x। अब मैं इनकी कुछ भी वैल्यू हो x की, जब मैं रेशो निकालूंगा तो वो 3:4 ही आएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ओके BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इवन मुझे तो भी सेंटीमीटर भी नहीं पता, दे मे बी इवन मीटर। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई विल से कि लेट BC इज इक्वल टू 3x यूनिट
एंड AC इज इक्वल टू 4x यूनिट। मैंने तो ये मान लिया, अब बात क्लियर हुई। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट AB। अब देखिए AB मुझे कैसे मिलेगा, जो AB स्क्वायर होना चाहिए, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC square will be 16x square minus 9x square. It should be 7x square. So obviously AB must be, ये यूनिट स्क्वायर और लगेगा यहां पर। So AB should be equal to √7 x यूनिट्स। ये बात समझ में आई आपके? तो इस तरीके से मुझे इन्हें समझना पड़ेगा। मुझे ये x जो मैंने यहां यूज किया है ये यूज करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट इसको 3 और 4 सेंटीमीटर नहीं ले सकता, मैं इसको 3 और 4 यूनिट भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी एक्चुअल वैल्यू 3 और 4 ही है। दे मे बी एनी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ। ऐसा नहीं है कि 3 का कोई और मल्टीपल होगा, 4 का कोई और मल्टीपल होगा, वरना तो रेशो फिर 3:4 नहीं आएगा। ओके अब मुझे जब AB और BC और CA तीनों पता लग गए, मैंने इसकी यहां वैल्यू पुट कर दी कि इट इज √7x, and now it is easy to find the value of cos A. So cos A will be AB over AC, which will be √7x is to 4x, and x will be cancelled by x and it will be √7 over 4. और जब मुझसे कहा जाएगा फाइंड tan A, tan A में it will be BC over AB. BC is 3x over AB is √7x. So it will be 3 upon √7. ठीक, तो ये मेरे पास तरीका है इसको सॉल्व करने का। मुश्किल नहीं है, समझ रहे होंगे आप, ज्यादा कोई परेशानी वाली है सच बात नहीं है। ठीक, अच्छा इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में हमें गिवन है, गिवन 15 cot A is equal to 8. Cannot I say कि cot A is equal to 8 by 15? I can say like that. और फिर ये यही क्वेश्चन बन गया। Then you have to find sin A and sec A. That you can do it now. तो हमें अगर इस तरीके से एक आइडिया लग जाए तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। ठीक, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 6 देखते हैं। इसको पॉज करके भाई नोट जरूर कर लिया करो। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ एंगल, इट इज क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट 90 डिग्री से छोटे हैं, सच दैट cos A is equal to cos B, then you have to show that angle A is equal to B. Show that angle A is equal to angle B. आप कह सकते हैं सर ये तो बहुत आसान है, cos से cos कैंसिल कर दो। ठीक, cos से cos कैंसिल कर दो, ऐसे कट कट A is equal to B। तो इस हिसाब से तो 25 इज इक्वल टू 15 भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोले सर 5 से 5 कर दो तो 2 इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। हो सकता है ऐसा? मेरी बात रिलेवेंट लग रही है ना आपको कि सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये आपने क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। बिलीव मी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ भी अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B, मतलब cos से cos कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू B, तो इसका वही मतलब है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बिना वजह की बात जैसे कह सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है सर फिर ये सॉल्व कैसे होगा?
देखो इसके दो केसेस हैं, यहां समझिए इस बात को, बड़े ध्यान से समझिए। मुझे ये नहीं पता है सबसे पहले तो कि ये एंगल ए और एंगल बी एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं या ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं। देखिए दो सिनेरियो पॉसिबल हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर एंगल ऑफ सेम ट्रायंगल। चलिए इसको केस फर्स्ट को ही ले लेते हैं पहले, कि अगर ये दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं तो देखिए क्या बनेगा, ए और बी एक्यूट हैं, तो एक बात तो बिल्कुल डेड श्योर है कि ए यहां बनेगा, बी यहां बनेगा, मुझे सी 90 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा बिकॉज ए एंड बी आर एक्यूट। ये तो बात अंडरस्टूड है ना भाई, ए एंड बी आर एक्यूट, तो मैं ए से ले सकता हूं, इसको तो नहीं ले सकता ना बी। अब क्यों? क्योंकि एक्यूट नहीं है, तो बी मैंने यहां ले लिया। चलिए अब मुझसे कहा जा रहा है cos A इज इक्वल टू cos B, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। अच्छा अगर मैं यहां से cos A निकालूं तो क्या निकलेगा? अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर मैं A लेता हूं तो बेस बैठेगा AC। देखिए अगर एंगल A कंसिडरेशन में है, एंगल A के लिए फॉर एंगल A बेस क्या बैठेगा? बेस बैठेगा AC, और हाइपोटेन्यूज तो अंडरस्टूड होता है, वो तो AB ही बैठेगा। लेकिन अगर मैं एंगल B की बात करता हूं तो बेटा बेस क्या बैठेगा? एंगल B लेने पर बेस बैठ जाएगा BC, हाइपोटेन्यूज अब BAB ही बैठेगा। ठीक है, तो अगर मैं cos से लेता हूं, और cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहां पर A के लिए? बेस है AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AB, तो ये तो cos A आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैं मान लीजिए cos B लेता हूं तो cos B के लिए बेस बैठ रहा है BC, हाइपोटेन्यूज इज स्टिल AB, और अब मुझसे कहा जा रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, तो क्या मीनिंग निकला इसका? cos A इज इक्वल टू cos B का, इसका मतलब यह हुआ कि AC ओवर AB इज इक्वल टू BC ओवर AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AC इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू AB। AB कैन बी कैंसल्ड बाई AB, जिससे मुझे मिलेगा कि AC इज इक्वल टू BC, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है। करेक्ट? अगर मैं एक ही ट्रायंगल में इन दोनों एंगल को लेके चलता हूं तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। करेक्ट? आइसोसेलेस ही होगा ना, दो साइड इक्वल हैं भाई। और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, और वो दोनों भी कौन से? द एंगल्स दोज आर अपोजिट टू equal sides are equal. Class 9th. So easily I can say कि if AC is equal to BC, then obviously angle A should be equal to angle B. मैंने ऐसा कोई रूल नहीं निकाला cos is cancelled by cos, कोई रूल होता ही नहीं है यार ऐसा। cos A अपने आप में it is not cos into A। करेक्ट? अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये दोनों अलग अलग एंगल में हुए, ट्रायंगल के एंगल हुए, समझो मान लो एक एंगल ये है ट्रायंगल, और मान लो एक ट्रायंगल ये है A एक्स वाई, और ये है B P Q। यहां पर मैंने एंगल कंसीडरेशन 90 डिग्री रखा है, समझ रहे हैं आप? और अब मुझे गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। चलिए मैं लेता हूं साहब, cos A इज इक्वल टू cos B,
कॉस से यहां पर क्या बैठेगा? बेस बैठ रहा है ax अपॉन ay इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं बी एंगल लेता हूं तो क्या बैठेगा? कॉस बी bp अपॉन पी क्यू, बी क्यू। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी का यहां ये मतलब बैठता है बेटे, करेक्ट। अब जरा समझने की इसको कोशिश कीजिए। अगर ये सिनेरियो मेरे सामने बैठ रहा है कि ax और ay का रेशो वही है जो pb और bq का रेशो है, तो क्या हाइपोटेनियस के अलावा और बेस के अलावा जो तीसरी साइड है उनके रेशो भी सेम बैठेंगे? थिंक ओवर इट, बैठेंगे या नहीं? अगर मैं प्रैक्टिकली एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिन साइड्स के रेशो, दो अलग अलग ट्राइंगल बनाऊं जिनके साइड्स के रेशो सिमिलर हो और एक एंगल उनमें 90 डिग्री भी है, यार एक बात समझो, अगर इन दोनों साइड्स के रेशो सेम हैं तो तीसरी साइड लिंक है इन दोनों से। आप कंस्ट्रक्शन करके भी इसको कर सकते हैं। तो जो तीसरी साइड आएगी उनका भी रेशो वही बैठेगा जो इनका रेशो है। वरना हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि चलिए हमने तो कंस्ट्रक्ट किया एक ट्राइंगल को, जब हम इनमें दो साइड का रेशो सेम रखेंगे तो तीसरी साइड अपने आप ही आएगी, सेम, चेंज हो ही नहीं सकती। इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि इसका मतलब ये जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं ये सिमिलर होने चाहिए, और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि cos A और cos B की वैल्यू सेम है, तो cos A का मतलब तो ax अपॉन ay ही हुआ ना, यानी हमने एक साइड और हाइपोटेनियस को इन्वॉल्व कर लिया और हमें ये पता है कि इन दोनों साइड का रेशो बिल्कुल सेम है। बात समझ रहे हैं आप? तो जो ये दो साइड बचेंगी इनके रेशो कैसे डिफर हो सकते हैं व्हेन दे आर कंबाइंड टू ईच अदर? रीजन, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो थर्ड साइड होती है वो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से अटैच रहती है बाकी दोनों साइड से, वो रैंडमली कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक, ये एनालिटिकल मेथड है। कुछ लोग इसको कंस्ट्रक्ट करके भी सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर देते हैं कि हम इसका जैसा एक ट्राइंगल बनाते हैं। हम ये कहते हैं चलिए हमने मान लीजिए कि हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक, जिसके हमने ये एंगल सेम रखे, तो उनमें भी साइड का रेशो फिर सेम आ जाएगा। तो हम ये ऐसे करके भी दिखा देते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। हमारा मेन पर्पस ये दिखाना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं नाउ दे आर सिमिलर, और अगर ये सिमिलर हैं तो ये जो दोनों एंगल होंगे ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हैं दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये दूसरा मेथड होता है। यू कैन चूज एनी वन, क्योंकि ऐसा स्पेशली आपसे नहीं बोला जाता कि नहीं आप इसी वाले को मानिए। जो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, आपके जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, वो आप चूज कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट करिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है समझिए। दे आर सेइंग इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, then check, what we have to check, whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not.
ये क्वेश्चन है। चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। हमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें हमें गिवन है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो इसका एक तो बेसिक मीनिंग ये निकल के आ जाएगा कि cot A मस्ट बी इक्वल टू 4/3। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, A B C, और अगर एंगल ऑफ कंसीडरेशन A है, cot A का फॉर्मूला क्या रहता है? cot का फॉर्मूला होता है बेसिकली cot थीटा हमेशा रहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस एंगल A को कंसीडरेशन वाला एंगल मान रहा हूं तो बेस तो A भी बन जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी BC। बेस होना चाहिए 4, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था मैं इसको 4x लूंगा और इसको मैं 3x लेता हूं। करेक्ट। अच्छा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप प्रूव करके दिखा सकते हैं कि जो AC आएगा वो 5x आएगा। इतना तो कर लेंगे 10th क्लास में भाई। अगर ये 4x है 3x है तो इट विल बी 5x। हम एक बार करके दिखा भी चुके हैं। ठीक, तो ये 5x आ गया। चलिए, हमें तीनों साइड पता लग गई। अब मुझे बेसिकली ये चेक करके देखना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आती है? नहीं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा, यहां भी देखिए क्या है। कुछ लोग कहेंगे कि सर टेन ए निकालो यहां से 3s अपॉन 4x। कुछ कह सकते हैं कि सर हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। cot A का रिवर्स होता है tan A भाई। मैं x क्यों करूं? मैं जानता हूं कि tan A इज 1 अपॉन cot A, तो मैं इसको सीधा लिखूंगा 1 माइनस, या तो मैं एक स्टेप और बढ़ा सकता हूं ऐसे करके 1 अपॉन cot A का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cot A होल स्क्वायर। लेकिन स्टेप कम करने के लिए तो हम कर ही रहे थे, पर चलिए हम जानते तो हैं ही। तो 1 माइनस, अगर tan A, अगर cot A की वैल्यू 4/3 है तो tan A की वैल्यू क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ दैट, विच विल बी 3/4। सो इट विल बी 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। समझ गए आप ये? It can be rewritten as 1 minus 9/16 upon 1 plus 9/16. It will be 7/16 divided by 16 plus 9, 25/16. ठीक है? 16 1 जा 16 minus 9 is 7/16. 16 plus 9, 25 and 16 is cancelled by 16, so it will be 7/25। तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की निकल कर आ गई। नाउ लेट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की देखिए क्या स्थिति रहती है, निकालते हैं इसको। इट इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब जरा कॉस स्क्वायर निकालिए, यहां पर क्या बैठेगा? कॉस स्क्वायर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो 4x स्क्वायर अपॉन 5x स्क्वायर। 4x अपॉन 5x का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, वो ज़्यादा अच्छा रहता ना, है ना? इससे लगता है कि हमने पहले कॉस निकाला है फिर उसको स्क्वायर किया, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 4x अपॉन 5x का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर डज नॉट मीन कॉस इंटू ए, नो, इट इज कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए निकालिए फिर उसका स्क्वायर कीजिए, सो इट शुड बी 3x ओवर 5x होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अब x से x तो यहां भी कैंसिल हो जाएगा,
एक्स 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 4 4 जा 16 by 25 minus 9 by 25. 16 minus 9 is again 7 by 25. So what actually we are observing? We are observing कि left hand side is equal to right hand side. So our answer is yes, it is. यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square minus sin square. It has been proved now. इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखते हैं, चलिए मिटा दें इसको। लीजिए, गया ये तो। Okay, let me come to another problem. It is question number 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 by root 3, then find the value of. चलिए इसको भी देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। Question number 9. It is tan A is equal to 1 by root 3, B पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। इट इज A, B, C, एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज A हियर फिलहाल, एंड वी आर गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। वैसे tan A होता क्या है? tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ये मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या मैं इसको 1 और रूट 3 मान सकता हूं? आंसर है नहीं, इसको मुझे 1x या सिर्फ x मानना होगा और इसको रूट 3x मानना होगा। अब ये जानते हैं आप, और इस हिसाब से अगर मुझसे कोई कहता है देन हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, तो आप पहले मानेंगे लेट BC इज इक्वल टू x and let AB is equal to root 3x, then AC should be square root of, चलिए बात वही है, x square plus root 3x square, तो ये 4x होके 2x आ जाएगा। तो AC can be 2x, 3x square plus x square 4x square, इसका स्क्वायर भी 4x square बैठ जाएगा। अब मुझे AC मिल गया,